Okay, students of class 9, good morning to all of you. Today we are going to start your textbook Beehive. Now we will read the first chapter, that is of the fun they had. This chapter is written by Isaac Asimov. In this chapter, we have a story of two children. They are discussing about the word of future. Actually, this lesson is totally depends on the future classes, future classroom, future school, whatever it may be. In this, you want to learn ideas. It has two terms, virtual reality and virtual classroom. This virtual reality is the reality created by computer software, and a virtual classroom actually is not a classroom, but is a learning place where you can learn with the computer or internet only. In this story, the girl Margie and the boy Tommy, who are only 11 and 13 respectively, the Margie, who wrote his diary on 17th May 2157, in which he wrote first line that today Tommy found a real book. Actually, the 17th May 2157 is mentioned that after 140 years ahead, what is the composition of classroom? In this story, you will find the what type of classrooms will be after 140 years ahead, what type of teachers will be, what type of students will be, and what type of school will be. The teachers will only robots, and students who learn with the computer and with the help of robot. There will be no classroom, there will be no school. All have to read at their home, and actually this is the subject of discussing between two boys. They think which type of schools, which type of classroom will be there, and either it is comfortable or not. At the end, their final discussion gone out, and they realized that the school where all students gather and learn
with each other will be more better than a school where a single student learn with the help of computer or robot. तो आपको इस स्टोरी का थीम मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये क्या कहना चाहती है, ये बता रहा है कि वह 140-150 साल के बाद भविष्य में हमारे स्कूल कैसे होंगे, हमारे टीचर कैसे होंगे, हमारी स्टूडेंट कैसे होंगे, किस टाइप से उनको पढ़ाई किया जाएगा, ये सारी बातें इस स्टोरी में डिस्कस की जाती हैं। एक लड़की मार्गी जो अपने क्लास में बैठती है, और क्लास क्या है, वो उसका घर में एक रूम है जिसमें उसका कंप्यूटर लगा है। रोबोट की मदद से वो पढ़ती है, और रोबोट जब ख़राब हो जाता है तो उसको हेडेक हो जाता है। तब एक मैकेनिक आकर रोबोट को बनाता है, फिर उसको पढ़ाई शुरू होती है। लड़का जो टॉमी है उसको ये अच्छा नहीं लगता है, और एक दिन अचानक उसको एक पुरानी बुक मिल जाती है। वो बुक बहुत ही पुरानी हो चुकी है, उसके पन्ने मुड़े तुड़े हैं, और उसमें वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो बुक स्कूल के बारे में है, स्कूल क्या होता है, और उसमें वो सारी बातें लिखी हैं। स्कूल में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक टीचर पूरे क्लासरूम को पढ़ाता है, सभी लोगों को एक ही चीज़ें पढ़नी है। ये सारी बातें लड़की को अच्छी नहीं लगती, वो बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये डिस्कशन चलता है, और एट द एंड ये डिस्कशन इस बात पर फिनिश होता है कि लर्निंग शुड बी विथ फन। पढ़ाई जो है वो एन्जॉयमेंट और खुशीपूर्वक होनी चाहिए, जिसमें एन्जॉयमेंट भी हो, फन भी हो, और साथ में पढ़ाई भी हो, न कि एक रूम में अकेले बैठकर और कंप्यूटर की मदद से पढ़ाई करना। Now open your book and see on the first page where you have some pictures. This picture is the school of the future. फ्यूचर स्कूल कैसे होंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and school as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये बता रहा है कि ये पिक्चर एक फ्यूचर की क्लास की है, जब हम आज जो बुकें और जो कुछ भी देख रहे हैं वो शायद उस समय नहीं होंगी। तब उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये आपको नीचे दिया हुआ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। स्टोरी शुरू होती है। Margie even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandmother told him that there was a time when all stories were printed on paper." एक बुक मिलती है टॉमी को, वो इसे दिखाता है मार्गी को, और मार्गी बोलती है कि बहुत समय पहले मेरे दादाजी ने बताया था कि जब वो बच्चे थे तो उनको इन्हीं बुकों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। अब आप रीड कीजिए पेज नंबर 2, वेयर यू विल फाउंड दैट द डिस्कशन बिटवीन टू बॉयज आर गोइंग ऑन, और एक्चुअली स्टोरी का मीनिंग आपको इस रीडिंग के बाद अच्छी तरह समझ में आएगा। ऑन सेकेंड पेज you have a discussion in that Margie
जो कि छोटी है टॉमी से, वो उसको पूछती है कि आपको ये बुक कहाँ से मिला। टॉमी बताता है कि ये उसको अपने घर के स्टोर रूम से मिला। उस बुक में स्कूल के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। मार्गी बहुत तिरस्कारपूर्ण शब्दों में पूछती है कि स्कूल, ये स्कूल क्या होता है। तब उसको टॉमी समझाता है कि एक्चुअली स्कूल में सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, एक टीचर पढ़ाता है। मार्गी को विश्वास नहीं होता है और वो बोलती है कि मेरा जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स हेयर रोबोट, तो रोबोट में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रोबोट एक ही वर्ड को रिपीट करता है, जिसकी वजह से मार्गी को बहुत अपसेट हो जाती है। मार्गी, उसको हेडेक हो जाता है। देन शी टोल्ड हर मदर, उसकी मदर एक मैकेनिक को बुलवाती है। वो मैकेनिक आकर के रोबोट को ठीक करता है। फिर मार्गी जो है उससे आगे बढ़ती है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। हियर द मार्गी पूछती है टॉमी से उस बुक में क्या है। टॉमी उसको बोलता है कि दिस बुक इज अबाउट स्कूल वेयर ऑल स्टूडेंट्स गैदर एंड ए टीचर टीच देम। मार्गी बहुत ही अनमने भाव से बोलती है, ये कैसे संभव है, एक टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा। तो टॉमी उसको बोलता है, बेवकूफ़, ये हम लोगों के समय का टीचर नहीं है, ये पुराना टीचर है जो कि एक मैन है, एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। मार्गी को ये एक्सेप्ट नहीं होता है, ये एक ह्यूमन बीइंग कैसे टीचर हो सकता है। टीचर तो मैकेनिकल मीन्स, उसके कहने का मतलब है कि टीचर तो रोबोट होता है, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। ऐसा डिस्कशन करते हुए वो फिर उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है और अनमने भाव से बोलती है, ठीक है, ऐसा टीचर हो सकता है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हियर द सेम डिस्कशन इज कंटिन्यू गोइंग ऑन। द टॉमी मार्गी को समझाता है कि पुरानी बुकें में बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ बैठ के पढ़ते हैं और उसमें उनको होमवर्क भी दिया जाता है। वो होमवर्क करके आते हैं, अगले दिन टीचर को दिखाते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। मार्गी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, वो उसके साथ झगड़ा करती है कि मुझे इस तरीके का टीचर नहीं चाहिए, मुझे तो टीचर मेरे घर पर चाहिए। टॉमी उसको समझाता है, मार्गी, तुम इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो, क्योंकि ये टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। आर्गुमेंट जारी रहता है। मार्गी बोलती है, मेरी मदर ने बोला है कि हर बच्चे के लिए उसका एक टीचर अलग होना चाहिए, जो उसके माइंड से, उसके दिमाग से, उसके हिसाब से उसको पढ़ाए। लेकिन स्कूल में एक ही टीचर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, ये कैसे पॉसिबल है। इसी तरीके से ये सेम डिस्कशन चलते रहता है और मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। उसका स्कूल रूम उसके जस्ट बेडरूम के बगल में है, जहाँ मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट उसका इंतज़ार कर रहा है। टीवी स्क्रीन्स और कंप्यूटर सब ऑन है और उस पर वो पढ़ती है। लास्ट पैराग्राफ जो इस स्टोरी का है वो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। मार्गी डिड सो विथ ए साई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom
going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teacher were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो लास्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मार्गी को ये रियलाइज होता है कि वो दिन कितने अच्छे होंगे जब मेरे दादा के दादाजी छोटे बच्चे होंगे और उस समय सारे बच्चे, एक अड़ोस पड़ोस के बच्चे एक साथ आते होंगे, हंसते होंगे, लड़ते होंगे, चीखते होंगे, सब स्कूल में एक साथ बैठते होंगे और जब स्कूल ख़त्म होता होगा तो सभी लोग एक साथ अपने घर जाते होंगे। क्योंकि वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे इसलिए होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद करते होंगे और जो टीचर्स होंगे वो भी मैन होंगे, अगल बगल का पीपल होंगे। ये सारी बातें वो रियलाइज करती है और अंत में मार्गी यही सोचती है कि उस समय की पढ़ाई कितनी अच्छी होगी, कितना फन होगा, और ऐसा सोचते हुए वो अपनी पढ़ाई को समाप्त करती है। तो ये स्टोरी इस तरीके से यहाँ समाप्त होती है। इसका स्टोरी का मेन एम आज का यही है कि पढ़ाई स्कूल में हो, सभी बच्चों का पढ़ाई एक साथ हो, उसमें जो फन है, उसमें जो एन्जॉयमेंट है वो अकेले पढ़ने में नहीं है। कंप्यूटर अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्चों के पढ़ने की जगह एक्चुअल में स्कूल ही होनी चाहिए। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। इन एक्सरसाइज you will have some questions of small answer questions, after then some brief questions, and after then some explained questions. Now first of question is, how old are Margie and Tommy? As you know, they are 11 and 13. What did Margie write in her diary? She write that Tommy found a book. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने पहले कभी बुक देखी थी? No, she has not seen a book before. What things about the book did she find strange? उसने बुक में क्या आश्चर्यजनक बात देखी? She found in the book that all the boys come together in the classroom and learn with each other. Next, what do you think a telebook is? A telebook is a book of computers in the shape of CD or pen drive, etc. Next question, where was Margie's school? Did she have any classmates? The Margie's school in the side of her bedroom, and she had no any classmates. Next is, what subjects did Margie and Tommy learn? Now, Margie and Tommy had learned arithmetics. Question number 1 complete हुआ. Question number 2, you have some extracts from this story and you write who says these words. तो ये आपको अपने से करना है. इसी तरीके से नेक्स्ट, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. एक पैराग्राफ में आंसर देना है और वो मैक्सिमम 30 वर्ड्स का होना चाहिए. तो रीड द स्टोरी केयरफुली एंड अंडरस्टूड. आफ्टर देन गिव द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस. क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना. आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट. इफ
एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माई होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।